Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula. As I have been sharing a lot about life skills. What are life skills? What are the ways to inculcate life skills? So you all have been preparing for your MEd exam, and I would like to wish you all the very best for your tomorrow's exam. And as I have shared with you a number of videos, in continuation with that, there are a few more topics that we should discuss. My dear educators, as we have already talked about pillars of education, the pillars of learning. There are 4 pillars of learning, and we have talked about that given by UNESCO, and that is also known as Delors Commission, and that was put forward by Delors, right? So we have discussed the 4 pillars, and there can be a short note on each pillar too. So in our previous video, we have talked about detailed note on the pillar of learning to know. And in this video, we shall talk about the pillar of learning to be in education. See, education is a multifaceted process that goes beyond the acquisition of knowledge and skills. Education का मतलब सिर्फ एक knowledge gather करना या कोई skill enhance करना नहीं है, but इसके beyond भी है. It has multifaceted process, right? एक सिक्के के तो 2 पहलू होते हैं, लेकिन एजुकेशन है इसके कितने ही एस्पेक्ट्स हैं, कितने ही एंगल्स हैं, कितने ही फेसेट्स हैं. So it also encompasses the holistic development of the individuals, nurturing their personal values, उनके ethics, attitudes, and social emotional well-being, right? The 4 pillars of education, as proposed by UNESCO, provide a comprehensive framework for understanding the goals and purposes of education. ये जो 4 पिलर है, इन 4 पिलर को अगर डिटेल में हम स्टडी करें, इनको समझें, राइट, तो यन वी विल बी एबल टू नो कि एजुकेशन का गोल क्या है, एजुकेशन का पर्पस क्या है. वो इन 4 पिलर्स में ही एक्सप्लेन किया गया है, राइट. लर्निंग टू नो नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करना, उस कैसे गेन करना है उस चीज के लिए ऑल द स्किल्स, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किस तरीके से हम उस नॉलेज को गेन करते हैं, अपनी क्वेस्ट फॉर लर्निंग जो है वो कैसे हम कंप्लीट करते हैं, राइट. दैट स्पार्क शुड कीप ऑन, राइट. एंड आफ्टर दैट लर्निंग टू डू, कि वोकेशनल स्किल्स की बात कर रहे हैं, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, और अभी हम इस वीडियो में जो डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग टू बी, पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल एथिक्स, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी बेटरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, तो वो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द पिलर ऑफ लर्निंग टू, and there is B missing. Okay. The pillar of learning to be recognizes the importance of personal development. Sorry. It recognizes this personal development, right? So self-realization, cultivation of ethical values. I told you कि हमें अपनी development के बारे में जो हम बात करते हैं, and it emphasizes the need for education to go beyond the knowledge acquisition. जो एजुकेशन की जरूरत है, नीड है, वो सिर्फ नॉलेज एक्विजिशन तक सीमित नहीं है, सिर्फ स्किल डेवलपमेंट तक सीमित नहीं है, बल व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट. और उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले है पर्सनल डेवलपमेंट. कैसे? अपने यूनिक टैलेंट्स के बारे में, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, पैशन के बारे में पता होना, उसके बारे में अवेयर होना, उसको डिस्कवर करना. एंड इट एनकरेजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. जो भी जितना आप सेल्फ के बारे में बात कर सकते हैं, प्लीज टॉक अबाउट दैट. आप उसको इसके में एक्सप्लेन करिए. सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट, ये सब आप एक्सप्लेन करेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव ये है. और उसके बाद आता है कल्टिवेटिंग एथिकल बिहेवियर. Education should instill ethical values, morals, right? And sense of responsibility in individuals. तो जब sense of responsibility आएगी, मतलब we are having empathy, compassion, respect, diversity, right? And commitment to social justice and the development of being responsible citizens, right? तो हम responsible citizen भी बनते हैं. तो वो इसका ऑब्जेक्टिव है, हमें होना चाहिए ये सब चीजें, हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट प्रमोटिंग वेलबींग, वेलबींग में आपका क्या आएगा, सोशल इमोशनल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स, and it supports the development of emotional intelligence, resilience, positive mental health, interpersonal skills,
fostering healthy relationships and personal fulfillment. देखिए हम कितना to be के बारे में कितना कुछ है. What is the meaning of learning to be? अपने बारे में पहले तो जानना, अपने बारे में जान लिया, फिर हमारे अंदर में हमने अपने बारे में सब जान लिया, अपना पैशन, अपने इंटरेस्ट, अपना टैलेंट, और उसके बाद एथिकल वैल्यूज, उसमें जितनी भी वर्च्यूज हैं एक्सप्लेन अबाउट दैट, एंड देन प्रमोटिंग वेलबींग, अपनी वेलबींग के बारे में सोचना, सोशो इमोशनल वेलबींग, राइट, रिजिलियंस, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, उसके बारे में जो है अवेयरनेस होना. एंड उसके बाद है फोस्टरिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग. एजुकेशन शुड नर्चर लव फॉर लर्निंग. लर्निंग के लिए प्यार हो, स्पार्क अपने अंदर में हमेशा ही वो ऑन रहे, राइट, टू किंडल द स्पार्क ऑफ लर्निंग फॉर लाइफ. सो डिजायर फॉर द कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग रहे, वो डिजायर हमेशा ही बनी रहनी चाहिए, राइट. It encourages individuals to engage in the lifelong learning, adapt to changing circumstances, and remain curious and open-minded throughout their lives. ये नहीं है कि हम सोचे कि हमने स्कूल लाइफ के लिए, कॉलेज लाइफ के लिए, यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए या कुछ और हमारे एग्जाम्स हैं, वहां तक हमें जाने के लिए we just require this education. But we need to think beyond that, कि इसके beyond क्या है, लाइफ लॉन्ग के लिए हमें जो है वो लर्न करना है, right? And if I second point, if we talk about pedagogical approaches, to support the pillar of learning to be, educators can employ various pedagogical approaches that facilitate personal development, ethical behavior, holistic growth. कुछ एक strategies के बारे में बात करेंगे कि learning to be को foster करने के लिए हम as educators कौन कौन सी strategies को use कर सकते हैं. Value education. This approach involves integrating ethical and moral values in the curriculum. हमारे जो ethical and moral values हैं वो curriculum का ही part होनी चाहिए. जब हम एक क्लासरूम में कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं, सपोज देयर इज अ लेसन ऑन गर्ल चाइल्ड, मे बी लाइक डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, तो कैन वी रिलेट द सेम विद द वैल्यूज. सिर्फ वो बच्चे को एक्सरसाइज के दिए हुए जो प्रश्न उत्तर हैं सिर्फ वही उसका याद करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट. लाइक सपोज एक जैसे हिंदी में एक कहानी है मुझे याद आ रही है, पिंजरे का तोता या एक काम करने वाले हाथ, राइट. तो अगर वो स्टोरी को पढ़ लिया, पढ़ के उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, पर्यायवाची शब्द कुछ याद कर लिए, कहानी की समरी लिख दी, क्या यही ऑब्जेक्टिव है हमारी टीचिंग का? वो नहीं है, राइट. वो स्टोरी को पढ़ाने का उसके पीछे एक लॉजिक है, उसको हम अपनी वैल्यूज के साथ बच्चों के साथ रिलेट करें, करिकुलम को इंटीग्रेट करें वैल्यूज के साथ, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, राइट. तो उनमें ये सारी वैल्यूज जो हैं, रिफ्लेक्शन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, से दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझें, लाइक इसके लिए हम डिस्कशंस कर सकते हैं, बच्चों को किसी एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, करिकुलम में इंटीग्रेट करेंगे, डिस्कशंस करेंगे एंड डिफरेंट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करेंगे. कैरेक्टर एजुकेशन, right? It focuses on intentional development of positive character traits. जो भी positive character traits हैं, जैसे कि honesty, integrity, responsibility, perseverance, respect, right? So these kinds of positive traits to be inculcated in the students. और उस चीज के लिए हम क्या करेंगे? We can have some activities like role playing, storytelling, right? So maybe being a role model for them, so they'll be able to enhance these activities. Talking about socio-emotional learning, SEL, that is socio-emotional learning program, aim to develop emotional intelligence, self-awareness, self-management, right? And relationship skills. These programs provide opportunities for the learners to develop empathy, self-regulation and effective communication skills. उनकी communication skills बेहतर होती हैं and self-regulation सीखते हैं, self-awareness, self-management, right? Interpersonal relationship, they become better when we communicate effectively. और उसके बाद है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स, आपको पता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ सिचुएशंस बच्चे फेस करते हैं एंड दे रिफ्लेक्ट ऑन दैट. लर्नर्स दे आर एंगेज इन द एक्टिविटीज दैट रिक्वायर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन and facilitating personal growth and the application of ethical principles, right? तो experiential learning से क्या होता है, जब आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कर रहे हैं, then
डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क में हम काम कर रहे हैं, यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन वट एवर यू आर डूइंग, तो सच काइंड ऑफ स्किल्स दे आर एनहांस्ड। अब हम बात कर रहे हैं challenges and consideration. While learning to be is a crucial pillar of education, certain challenges are there, right? अगर आपको एक नोट आता है, देखिए हमने इसमें सबसे पहले क्या लिखा कि learning to be का मतलब क्या है। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस ये किया कि पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगी, क्या क्या होना चाहिए, लर्निंग टू बी का मतलब क्या है। उसके बाद में हमने डिस्कस किया कि पेडागोजीज उसके लिए कौन कौन सी होनी चाहिए, राइट, कौन सी पेडागोजी हो सकती है, कैसे हम ये इंकलकेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसमें चैलेंजेस कौन से आते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कल्चरल डाइवर्सिटी। एजुकेशन शुड कंसिडर एंड रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज, and the promotion of ethical behavior should be inclusive and sensitive to different cultural contexts. So teacher role modeling education plays a very vital role. So teacher role modeling, educators play a vital role in modeling ethical behavior, personal development. हम जो educators हैं बहुत important role play कर सकते हैं ethical behavior या personal development के लिए. So as teachers we should embody the values they seek to instill in the learners. जो हम बच्चों में, students में जो values inculcate करना चाहते हैं, सो हमें उन वैल्यूज को एम्बॉडी करना चाहिए, एम्बॉडीमेंट होना चाहिए, यानी कि रोल मॉडल होना चाहिए, राइट, वो हमें भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। अगर हम स्टूडेंट्स में चाहते हैं कि उनमें कर्टसी हो, तो कर्टसी हमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इफ वी वांट कि स्टूडेंट्स पंक्चुअल हो, तो वो हमें पहले पंक्चुअल होना पड़ेगा, तो तभी हम जो है वो बच्चों में वो वैल्यूज इंकलकेट कर सकते हैं। बिल्कुल उस स्टोरी की तरह है, अगर यहाँ से हम समझे कि जैसे वो कहते हैं कि एक बार एक संत महात्मा कोई थे, कोई गुरु जी थे, उनके पास एक मदर अपने एक बच्चे को लेकर जाती है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा मीठा खाता है, गुड़ बहुत ज्यादा खाता है, इसको प्लीज समझाइए कि गुड़ मत खाया कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो साधु संत महात्मा जो भी गुरु हैं वो उसको बोलते हैं कि आप इसको जो है 1 हफ्ते बाद लेकर आइएगा। ठीक है, हफ्ते बाद वो मदर अपने बच्चे को फिर से लेकर आती है, तो गुरुजी तब कहते हैं कि जी बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इससे नुकसान होता है। तो वो मदर सोच में पड़ जाती, पूछते कि गुरुजी मैं इतनी दूर से आई हूँ, इतना सारा रास्ता तय करके, 1 हफ्ते पहले जब मैं आई थी तो आप तभी ये बात कह देते, मुझे दोबारा क्यों बुलाया इतनी बात कहने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले तो अब तो बेटा मैं भी गुड़ खाया करता था, अब 1 हफ्ते से मैं नहीं खा रहा हूँ, तो जो मैं नहीं खा रहा हूँ तब मैं ये बात समझाने के लायक हूँ, बिकॉज वॉट एवर you practice that only you have to preach. ऐसा नहीं है कि you are preaching something else and you are practicing something else in your life, तो ये नहीं होना चाहिए, right? So teacher role modeling, they play a very important role. Let's be the role models for our children. Now आगे बात करेंगे assessment of personal development, evaluating personal growth, character development एंड एथिकल बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स, राइट। इजी नहीं है ये, तो कोई एक 3 घंटे का पेपर नहीं है जो आप सब एमएड का एग्जाम देने जाओगे, या बाकी बच्चे 3 घंटे के लिए लिखते हैं, यूनिट टेस्ट हो गया 1.5 घंटे का, कोई एग्जाम तो नहीं ले सकते इसका पेन एंड पेपर टेस्ट। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दे देंगे, असर्शन रीजन भी दे देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी दे देंगे, बट कितना जानेंगे, राइट। असेसमेंट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। असेसमेंट के कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स हो सकते हैं, पोर्टफोलियोज है, सेल्फ जर्नल्स, रिफ्लेक्शन के लिए जर्नल्स हो सकते हैं, राइट। मतलब ओवरऑल बहुत सारी चीजें इसमें हम ऐड कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन गो अहेड विद द असेसमेंट। सो दिस पिलर ऑफ लर्निंग टू बी recognizes the importance of personal development, ethical behavior, and cultivation of holistic growth in education. So let us focus on each pillar of education when we are teaching. So learning to be, I hope आपको समझ में आया। learning to be अगर इसको conclude करें तो ये किसके बारे में, अपनी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। तो जितना भी आप सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ एस्टीम, राइट, जो भी आपके मन में सेल्फ से रिलेटेड आ रहा है, आप उस चीज को लिखिए और उस चीज को एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर उसके कुछ पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज लिख दीजिए एंड जो चैलेंजेस फेस हो से वो लिख दीजिए, तो देन आपका ये शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टे ट्यून टू मेंटरिंग द मेंटोर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अदर पिलर्स of learning and education.